So, the first time when I went through anxiety as well, and this is something very personal, और मैं इतना इसके पहले शेयर नहीं करती थी, but I share it very openly now because I think जितनी relatability बढ़ती है, आप उतना ही medical या psychological help की तरफ जाते हैं कि if they can go through this thing, it's fine, हम भी गुजर सकते हैं. So at that time when I was struggling with anxiety myself, उस time पे I used to be consistent in praying. I used to do parda. I used to be a Quran student. But my question was कि मुझे anxiety क्यों हो रही है? I'm doing everything. मैं तो नमाज भी पढ़ी हूँ, कुरान भी पढ़ी हूँ, पर्दा भी करती हूँ, and I have अल्हम्दुलिल्लाह not that कि I'm a perfect person, but लेकिन जो basics हैं वो तो मैं कर रही हूँ. तो फिर मुझे anxiety क्यों हो रही है, right? And that created a sort of very bad anxiety in me और ज्यादा कि ये ऐसा हो क्यों रहा है. अल्लाह ताला wouldn't be liking me कि मैं तो एक इंसान हूँ जो कुरान पढ़े, नमाज पढ़े, फिर भी उसको ये सारी चीजें हो रही है. अल्लाह would be questioning me कि how can you go through this thing. And that was the point when I started learning and I started exploring through the Islamic lens कि मेरे emotions की कोई value है भी कुरान में या नहीं है. Because I used to feel very guilty about having anxiety. And that is the point जब मैंने अपने sessions में भी ये चीज notice की after sitting with like hundreds of Muslims in counseling sessions. एक चीज जो मैंने बहुत prominent देखी है that is कि people don't come to me just because they are feeling anxious or depressed. They come because they are anxious or depressed and they are feeling guilty for being anxious or being depressed. This is the reason for that they are coming कि हमें guilty भी feel हो रहा है उसके ऊपर. And they think अल्लाह ताला would be so disappointed in them और उनके इमोशन तो हर्ट कर ही रहा है डिप्रेशन का, एंजाइटी का, बट एट द सेम टाइम गिल्ट जो है वो और ज्यादा हर्ट कर रहा है. फिर द नेक्स्ट आवर जो हम आज इंशाल्लाह यहाँ पे चीजें डिस्कस करेंगे. आई नो आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं. मे बी दे आर डॉक्टर्स, मे बी दे आर साइकोलॉजिस्ट, मे बी दे आर स्टूडेंट्स, मे बी दे आर एजुकेटर. आप लोगों के कोई ना कोई टाइटल्स हैं, राइट? सो आई जस्ट वांट just for this session I want you to leave your titles out of this classroom, out of this room, and just be a human being. A human being who has disappointment, who has fears, a person जिसने शायद किसी को खोया है, a person जो बहुत परेशान है मे बी फ्यूचर के बारे में, अपने पास्ट को लेके. just be a human being. अपने टाइटल्स को थोड़ी देर के लिए छोड़ दें. because when we have those titles on, हमारे ऊपर बहुत सारे मास्क होते हैं. when I had the title of being a person who is religious on myself, I could not understand myself. So just leave your title away for some time. जब आप यहाँ से निकलेंगे तो आप दोबारा वो टाइटल पहन लें. So is that fine with everyone? किसी को मसला तो नहीं है? Okay, alhamdulillah. So when I read Quran and हमारे एक एक्सपेक्टेशन होती है, आई थिंक अब तो थोड़ी सी अवेयरनेस इस चीज़ के बारे में क्रिएट होना शुरू हो गई है, बट हमें पहले लगता था बहुत ज़्यादा कि डिप्रेशन एंजाइटी जो है सिर्फ उन लोगों के लिए जो कुरान से दूर होते हैं, दीन से दूर होते हैं, या अपनी ज़िंदगी में बहुत गुनाह कर रहे होते हैं, राइट? So when I study Quran, I didn't find any prophet who was emotionless. I saw prophets जो रो भी रहे हैं, उनके fears भी हैं, grieve भी कर रहे हैं, they are struggling as well. And by going all of that thing, Allah Ta'ala उनको support भी कर रहे हैं, and Allah Ta'ala is not rejecting them because of those emotions, right? So हमने कहीं ना कहीं expectation लगा ली है कि if I want to be a good person, if I want to be a good believer, मेरा इन चीज़ों के साथ कोई ताल्लुक नहीं है. मुझे इन चीज़ों से बहुत दूर रहना है. हालांकि sometimes it is not in your control. ये हो जाती हैं चीज़ें. बुखार आपसे पूछ के नहीं आता कभी आपको कि आर यू रेडी फॉर दैट. वो आ जाता है. किसी की जिंदगी में फॉर इंस्टेंस किसी को कैंसर है तो इट्स नॉट लाइक कि आप ज्यादा ईमान वाले हैं आपको नहीं ये कंडीशन हो सकती, वो आ जाता है, राइट? सो पहले तो अंडरस्टैंड करते हैं कि मेंटल हेल्थ होता क्या है. इन इन योर ओपिनियन आप लोगों को क्या लगता है कि इफ वी टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ फ्रॉम द इस्लामिक लेंस, व्हाट इज मेंटल हेल्थ? एंड देयर इज नो राइट और रॉन्ग आंसर, बस जो आपका एक परसेप्शन है, आपका सब्जेक्टिव ओपिनियन है, जस्ट शेयर दैट. ओके, क्लैरिटी ऑफ माइंड.
You know what to do without overthinking. It's a phase of severe serving things, state of peace, being mentally content, state of mind, inner peace, stimulated nervous system, how much inner peace we have. Mental health is about to stay calm and focused even when your situations are not good and you are in trouble. I have a very strong objection with this definition. Ke you stay calm and focused even when your situations are not good and you are in trouble. If I give you an example of Musa alayhi salam, जब अल्लाह ताला ने कोहे तूर पे नहीं, जो first time he went to meet Allah subhanahu wa ta'ala and he was not even expecting कि अल्लाह ताला वहाँ पे होंगे and I would become a prophet. क्या हुआ था कि when he spoke to Allah subhanahu wa ta'ala और अल्लाह ताला ने जब उनके, मैं इसको थोड़ा सा कट शॉर्ट करी हूँ, जब अल्लाह ताला ने उनके स्टाफ को in a snake convert किया, what was his response? किसी को याद है? He ran. बहुत तेजी से वो भागे. क्यों भागे थे? हालांकि हमें पता है कि मूसा अलैहि सलाम वाज अ वेरी स्ट्रांग पर्सन. उनकी तब भी वैल्यूज थी, इवन बिफोर बिकमिंग अ प्रॉफिट उनकी तब भी वैल्यूज थी. ही वाज अफ्रेड एंड ही रैन फॉर हिज लाइफ, राइट? व्हाई? बिकॉज खौफ हम सबके अंदर होते हैं, फियर्स हम सबके अंदर होते हैं, एंड फियर्स को अगर हम मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में थोड़ा सा उसको एग्जैजरेटेड फॉर्म में देखें तो इट कैन बी समटाइम्स एंजाइटी. और आपका ब्रेन जो है दैट इज डिजाइन टू प्रोटेक्ट यू. योर ब्रेन इज नॉट डिजाइन टू गिव यू कंफर्ट. और वो हमेशा जब उसको इन्वायरमेंट में कोई थ्रेट नजर आता है ना, तो वो फाइट एंड फ्लाइट मोड में चला जाता है, फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स उसका आता है. सो दैट इज वाई मूसा अलैहि सलाम रन फॉर द लाइफ. तो इट्स नॉट अबाउट कि आप हर वक्त सिचुएशन में बड़े काम एंड कंपोज रहेंगे. यस यू कैन बी, बट दैट इज अ जर्नी. वो भी तो आप, कभी आप एंग्शियस रहे होंगे तभी तो सीख के फिर काम बनेंगे. इजंट इट सो? ऑलराइट, सो मेंटल हेल्थ क्या होती है? हम जब यूजुअली सुनते हैं कि समवन इज स्ट्रगलिंग इमोशनली, यूजुअली तौर पे फर्स्ट एडवाइस क्या दी जाती है? अगर वो एक इंसान थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा हो तो हम कहते हैं नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो. एंड आई एम नॉट अगेंस्ट दैट. आई एम नॉट सेइंग कि ये चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है. एक्चुअली बीइंग फ्रॉम द फील्ड, मेरा ज्यादा फोकस होता भी इस्लामिक साइड पे ही है, बिकॉज आई बिलीव कि अल्लाह ताला ने हमें सारे सॉल्यूशंस दीन में दिए हैं. वेस्टर्न आइडियोलॉजीज तो कभी कभी दे आर जस्ट अ फ्लफ. ठीक है? तो हम ये जब ये एडवाइस देते हैं कि नमाज और पढ़ो, कुरान पढ़ो, बुराई उसमें नहीं है. But prayer is essential. But is it a complete Islamic response? This is not a complete Islamic response. आप में से अगर कोई डिप्रेशन में है, एंजाइटी में है, या हम अगर वो टर्मिनोलॉजीज ना भी इस्तेमाल करें, परेशान है किसी चीज के बारे में, एंड यू कम टू मी एंड आई से कि आप नमाज पढ़ें, अल्लाह पे तवक्कुल करें, इज इट गोइंग टू हेल्प यू? इज इट गोइंग टू रिलीज योर स्ट्रेस? तवक्कुल की भी जब हम बात करते हैं कि हैव तवक्कुल, करना कैसे, वही तो इम्पोर्टेंट है. तवक्कुल है क्या चीज? सो इंशाल्लाह वी विल डिस्कस दैट. सो इस्लाम, जैसे हमारा टाइटल भी है बिटवीन फेथ एंड फीलिंग्स, इस्लाम ने कभी भी हमसे ये नहीं कहा है कि जस्ट चूज बिटवीन फेथ और फीलिंग्स. या तो ईमान को चूज करो या अपनी फीलिंग्स को चूज करो. इट टीचेस अस कि हमने नेविगेट कैसे करना है अपनी फीलिंग्स को थ्रू फेथ, राइट? जब हम इस्लामिक परस्पेक्टिव से बात करते हैं मेंटल हेल्थ की, तो मेंटल हेल्थ इज नॉट merely द एब्सेंस ऑफ एन इलनेस. इट्स नॉट जस्ट द एब्सेंस ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ मेंटल इलनेस. अगर फॉर इंस्टेंस एक बंदा है, उसको कोई डिसऑर्डर नहीं है, तो दैट पर्सन इज मेंटली साउंड. दैट इज नॉट जस्ट द एब्सेंस ऑफ अ मेंटल इलनेस. इट इज अ स्टेट इन विच आवर माइंड, बॉडी, हार्ट एंड सोल फंक्शन इन हार्मनी. ठीक है? And while all of this is being in harmony, it has to be intact, or it has to be connected to Allah subhanahu wa ta'ala. This is the definition of mental health. Mental health जो हम समझ रहे हैं ना कि अच्छा ये तो शैतानी चीजें हैं, ये तो वेस्टर्न आइडियोलॉजीज हैं, दैट इज नॉट इट. असल में मेंटल हेल्थ की बात तो अल्लाह ताला ने कुरान में कई साल पहले कर दी थी. अब तो सिर्फ उसको रीडिस्कवर किया जा रहा है और उसी तरह की टर्मिनोलॉजीज को थोड़ा मॉडर्न फॉर्म में लेकर आया जा रहा है, राइट? व्हेन वी टॉक अबाउट वेस्टर्न साइकोलॉजी, तो वेस्टर्न साइकोलॉजी में अगर आप लोगों को शौक है, या आपको कोई साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, या जो सेल्फ हेल्प की जर्नी पे जाते हैं, उनको आइडिया हुआ होगा कि जब भी आप वेस्टर्न आइडियोलॉजीज को पढ़ते हैं, जैसे फ्रॉइड को पढ़ लें, आप किसी भी थेरिस्ट को पढ़ लें,
they have focused on only two things, that is mind and body. That is it. एंड अब आके दे आर रियलाइजिंग इट कि हमारी भी थेरेपीज जो है ना थोड़ी शॉर्ट लिव्ड होती जा रही हैं और उस तरह से इम्पैक्ट नहीं आ पा रहा. क्यों नहीं आ पा रहा? बिकॉज दे आर नॉट फोकसिंग ऑन टू मेजर इंपॉर्टेंट थिंग्स, दैट इज हार्ट एंड सोल. आप में से कभी किसी के साथ ऐसा हुआ है कि यू आर फिट फिजिकली तौर पे, लेकिन एक अजीब सी स्टेट है जो आप किसी को समझा भी नहीं पा रहे, एंड व्हेन समवन इज आस्किंग यू कि क्या है, मुझे बताओ, मेरे साथ शेयर करो, इवन इफ द पर्सन इज ट्रस्ट वर्दी, यू फील लाइक पता नहीं, मुझे नहीं पता मैं क्या बताऊं, मुझे खुद भी समझ नहीं आ रही. इट हैपेंस, और इज इट जस्ट मी? It happens. So it's not always about the mind, it's not always about the body, it is more about the soul. जब हमने अल्लाह ताला ने हमसे वादा लिया था ना, अलस्तु बिरब्बिकुम, so we said बला, अल्लाह ताला आप ही हमारे रब हैं, and we came back into this world. तो वो जो हमारी एक परफेक्ट कॉन्वर्जेशन अल्लाह ताला के साथ हुई थी ना वहां पे, हमारी सोल उसको मिस करती है. एंड व्हेन इट इज डिप्राइव्ड, जब हम उसको वो फ्यूल नहीं दे रहे होते, वो नरिशमेंट नहीं दे रहे होते, अल्लाह ताला के साथ वो कनेक्शन बिल्ड नहीं कर रहे होते, तो इट फील्स डिप्राइव्ड. आपको लग रहा होता है कि यार समझ नहीं आ रही, सब कुछ ठीक है, एनवायरमेंटली भी ठीक है, पेरेंट्स के साथ रवैया भी ठीक है, सब चीजें ठीक जा रही हैं, लेकिन ये वॉइड है, ये फिल नहीं हो रहा. सो दैट इज मोर द स्पिरिचुअल थिंग. एंड इसीलिए बहुत दफा ऐसा होता है कि जब हम लोगों को रिकमेंड करते हैं ना कि आप कुरान से थोड़ा सा अपने आप को नेविगेट करें, थोड़ा सा कुरान पढ़ने की कोशिश करें, तो कुरान उनको वो सुकून देता है जो थेरेपी सुकून नहीं दे रहा होता. मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं एंड दे आर डिचिंग द वेस्टर्न थेरेपीज, दे आर सेइंग कि वो वर्कआउट नहीं करें. वो कहते हैं एक रिलेशनशिप खत्म हो गया है तो वर्क ऑन योरसेल्फ सो यू कैन अट्रैक्ट अ बेटर रिलेशनशिप. आप वक्त जाया ना करें, आप मूवी देख लें, आप ये कर लें, आप विजन फाइंड कर लें, पर्पस फाइंड कर लें, बट ऑल ऑफ दैट डज नॉट मैटर इफ इट्स नॉट कनेक्टिंग यू विद योर लॉर्ड. इट्स नॉट वर्किंग. ठीक है. सो अब हम देखते हैं कि हाउ रसूलुल्लाह, ऑब्वियसली सीरा इज फुल ऑफ इमोशंस, सीरा इज फुल ऑफ लेसन्स, काउंसलिंग किस तरह की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने. ऑब्वियसली वी डोंट हैव इनफ टाइम, तो मैं इसको थोड़ा सा कट शॉर्ट करके वी विल बी फोकसिंग ऑन जस्ट 2 or 3 एस्पेक्ट्स फ्रॉम द सीरा एंड 2 and 3 एस्पेक्ट्स फ्रॉम द कुरान, कि आपको एक वो फाउंडेशन मिल जाए कि किस तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूज्ड टू ट्रीट पीपल. सो दिस इज एन इंसिडेंट which comes in hadith. एक दफा ऐसा हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में एंटर हुए तो वहां पे एक सहाबी बैठे हुए थे, एंड ही इज नेम्ड एज अबू उमामा. तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि आप इस वक्त यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्योंकि नमाज का वक्त नहीं था उस टाइम पे. सो अबू उमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वाज वेरी मच स्ट्रेस्ड एंड ही सेड कि अल्लाह के नबी, मुझे यहाँ पे मेरे गमों ने और कर्ज में रखा हुआ है. ठीक है. सो ही इज सेइंग कि मेरे कर्ज और मेरे गम, इन्होंने मुझे यहाँ पे रखा हुआ है, मैं मस्जिद में इस टाइम इसीलिए. तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि मैं आपको एक ऐसी दुआ सिखाऊं, अगर आप उसको सुबह और शाम पढ़ें तो अल्लाह ताला आपके गम को और आपके कर्ज को आपसे दूर कर देंगे. तो द सहाबी सेड कि यस, व्हाई नॉट. तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ये दुआ सिखाई, दैट इज अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्मी वल हज़न व अऊज़ु बिका मिनल अज्ज़ी वल कसल व अऊज़ु बिका मिनल जुबनी वल बुखल व अऊज़ु बिका मिन गलबति दैन व क़हरि रिजाल. So the translation is कि O Allah, I seek refuge in you from anxiety and depression. यहाँ पे जो दुआ में वर्ड है ना हम, दैट इज फियर. खौफ आपको हमेशा होता है फ्यूचर के बारे में, खौफ आपको पास्ट के बारे में नहीं होता. सो व्हेन ही इज सेइंग कि आप ये दुआ पढ़े एंड ही सेइंग कि आई सीक रेफ्यूज इन यू फ्रॉम एंजाइटी, इट मींस इट एग्जिस्ट्स. एंड देन ही सेज हजन. हजन क्या होता है? सॉरो, ग्रीफ. ग्रीफ आपका फ्यूचर से रेलिवेंट नहीं होता, ग्रीफ आपका पास्ट से रेलिवेंट होता है, दैट इज डिप्रेशन. सो यहाँ पे दुआ में दोनों एस्पेक्ट्स कवर किए गए हैं. एंड ही आगे फिर वो कहते हैं, आई सीक रेफ्यूज इन यू फ्रॉम वीकनेस एंड लेजीनेस, आई सीक रेफ्यूज इन यू फ्रॉम कॉवर्डाइज एंड माइजरलीनेस, एंड आई सीक रेफ्यूज इन यू फ्रॉम बीइंग ओवरकम बाय डेट एंड ओवरपावर्ड बाय men. अब ये हदीस जो है, आप में से कितने सारे लोगों ने ये पहले सुनी भी थी?
सो द थिंग इज कि ऐसा नहीं है कि हमें पता नहीं है। कुरान हम पढ़ते हैं, नमाज हम पढ़ते हैं, अहादीस भी पढ़ते हैं, सीरा भी पढ़ते हैं, पता हमें है, लेकिन हम उन चीजों को इंटरनलाइज नहीं करते। अब यहाँ पे हम इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करेंगे, द लेसन्स वी गेट आउट ऑफ दिस। फर्स्ट थिंग इज, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आप रिस्पॉन्स चेक करें। जब वो मस्जिद में एंटर हुआ और उन्होंने देखा कि एक सहाबी किसी तकलीफ से गुजर रहे हैं, या अपेरेंटली वो बैठे हुए हैं वहां पे, ही डिड नॉट इग्नोर। उन्होंने नहीं कहा कि बैठा होगा कुछ कर रहा होगा मैं अपना काम करता। ही वेंट एंड आस्क्ड कि क्या हुआ है। हम ऐसे नहीं करते। हमें नजर आता है अपने इन्वायरमेंट में कोई परेशान है, हम क्या करते हैं, हम उठ के चले जाते हैं, होगा उसका कोई मसला, इट्स फाइन, मैं क्या करूं, राइट। सेकेंडली, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनसे पूछा कि क्या मसला है, आप सोचें कितनी कितना अल्लाह के नबी ने उनको रिलैक्सेशन और कंफर्ट दी हुई थी, कि उन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरे बारे में क्या सोचेंगे। सहाबी ने फौरन से अपना मसला बता दिया, ये मेरा मसला है। हमने आज तक कॉन्वर्जेशंस को इतना आसान बनाए कि कोई हमारे पास आके इतना खुल के हमें बता सके कि मैं किस चीज से गुजर रही हूँ या किस चीज से गुजर रहा हूँ। वी डोंट डू दैट। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनसे सुनी बात, उनका आगे से रिस्पॉन्स क्या है? उन्होंने ये नहीं कहा कि हाउ ऑन अर्थ कैन यू से दैट, कि तुम्हें इस बात के ऊपर स्ट्रेस है कि मेरा कर्ज कैसे अदा होगा या फिर मेरे ऊपर गम है। तुम तो अल्लाह के नबी के दौर में रह रहे हो, कुरान नाजिल हो रहा है, राइट। यू आर द बेस्ट ऑफ द पीपल। मैं तो तुम लोगों को ट्रेन कर रहा हूँ कि तुम लोगों ने उम्मत को लीड करना है, तबलीग करनी है, दावत देनी है लोगों को। तुम कह रहे हो कि तुम कर्ज के बारे में परेशान हो, और तुम कह रहे हो कि तुम्हें गम हो रहा है। हाउ ऑन अर्थ दिस कैन हैपन? कुछ भी नहीं था ऐसा। ही सेड कि मैं आपको, एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट, एडवाइसेस देनी शुरू नहीं कर दी, ये कर लो वो कर लो। हम क्या करते हैं, हमसे कोई मसला शेयर करा होता है, आधी बात भी उसकी नहीं होती, हम कहते हैं हाँ 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 ये कर लो वो कर लो ऐसे कर लो ये कर लो। दिस इज नॉट समथिंग विच शुड बी डन। पहले आप किसी की पूरी बात तवज्जो से सुनते हैं, एंड देन यू आस्क द परमिशन कि मैं आपको सोल्यूशन दूं। बिकॉज एट टाइम्स लोगों को सोल्यूशन नहीं चाहिए होता। दे आर जस्ट कमिंग बिकॉज दे वांट समवन टू comfort them and someone to listen to them. आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ होगा कि कभी कभी सोल्यूशन आपको पता होता है, you just want someone to hear you. Is it that? Right? So it's not like कि हमारे पास solutions नहीं होते हैं. At times we just want someone to listen to us. वो जो एक human need है ना, the need to be heard, the need to be understood, वो हम चाहते हैं कि वो fulfill हो। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, being the perfect person, being the leader, ये नहीं कहा कि आओ मैं तुम्हें सिखाता हूँ क्या करना है। He is asking कि मैं आपको solution दूँ, and when he says, तो अल्लाह के नबी ने तब उनको वो solution दिया। एंड देन द सहाबी रिपोर्ट्स कि जब मैंने ये दुआ पढ़ी सुबह और शाम, तो अल्लाह के नबी ने, नमाज अल्लाह ताला ने मेरे से कर्ज को भी दूर कर दिया और गम को भी दूर कर दिया। Now this is the dua that Nabi sallallahu alaihi wasallam used to recite himself. खुद भी वो ये दुआ करते थे। तो हम कैसे कह सकते हैं कि एंजाइटी और डिप्रेशन एग्जिस्ट ही नहीं करता? इसकी तो कोई बेस ही नहीं है, ये तो सिर्फ शैतानी चीजें हैं। कोई चीज एग्जिस्ट करती है तभी तो हम उससे पनाह मांगते हैं। ਨਾਲ ਕਾਲਜ ਕੋ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਆਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹੈ Can you turn off the mic? डॉक्टर ही है All right. So आप सोचें कि हम एट टाइम्स किस तरह से, आई थिंक कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, इफ यू गाइस आर हियर, इट मींस कि समहाउ थोड़ी बहुत आप लोगों को अवेयरनेस है इन चीजों के बारे में। बट व्हेन यू वॉक आउट ऑफ द रूम, देयर आर गोइंग टू बी फैमिलीज, देयर आर गोइंग टू बी पीपल अराउंड यू जो इन चीजों को कंसिडर भी नहीं करते। सो आप लोग अगर यहाँ पे हैं, आप लोगों के ऊपर एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोगों ने इस चीज की अवेयरनेस क्रिएट करनी है। क्योंकि सुसाइड इज गेटिंग वेरी कॉमन, डिप्रेशन इज गेटिंग वेरी कॉमन, एंजाइटी इज गेटिंग वेरी कॉमन। तो अगर किसी चीज की अवेयरनेस आप तक आ गई है, दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी के दूसरों को भी अवेयर करना है। और आप जब लोगों के साथ बात करते हैं, उनको सुनते हैं, तो आपको रियलाइज होता है लोगों की कितनी मिसकंसेप्शंस हैं और कितने मिथ्स हैं। अभी जब वो शेयर करे थे, आई थिंक उनका नाम आकिफ है, जब वो शेयर करे थे मिथ्स, तो लॉट ऑफ पीपल वर सेइंग ये मिथ है, ये मिथ है, ये मिथ है। सो इट क्रिएटेड सम सॉर्ट ऑफ दिस फीलिंग कि हमें पता है ये सारी मिथ्स ही हैं। बट जस्ट बिकॉज यू नो डज नॉट मीन कि एवरीबडी नोज दैट। पीपल डोंट नो अबाउट दैट।
right? So the next event that comes in again, हमें सीरा से मिलता है. We all know that कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बहुत सारे बच्चों को खुद दफनाया था. I think it was only just फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बाद उनकी डेथ हुई थी. All of his children died. All of his children died in his period when he was alive. So जब इब्राहिम जो उनके बेटे थे जब उनकी डेथ हुई and he was just a beautiful little child, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे थे. He was shedding tears. तो एक और सहाबी अब्दुर्रहमान बिन औफ ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि ओ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप रो रहे हैं, आप रो रहे हैं. एंड ही सेड कि ओ इब्ने औफ ये अल्लाह ताला की रहमत है. और फिर अल्लाह के नबी और रोए. और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वो जो बहुत फेमस लाइंस हैं, द आईज आर शेडिंग टीयर्स एंड द हार्ट इज ग्रीव्ड. आंख आंसू बहाती है और दिल गमगीन है. एंड वी विल नॉट से एक्सेप्ट व्हाट प्लीजेस आवर लॉर्ड. लेकिन जबान से वही कहेंगे जो अल्लाह ताला को राजी करें. एंड देन ही सेड ओ इब्राहिम इंडीड वी आर ग्रीव्ड बाय योर सेपरेशन. वी डोंट अलाउ आवरसेल्व्स टू बी ग्रीव्ड. हम में से कितने सारे लोग हैं जब किसी बहुत क्लोज्ड वन की डेथ हो जाती है. आई एम श्योर कि यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जिनमें मे बी यू गाइस हैव लॉस्ट योर पेरेंट्स. किसी ने अपनी माँ को खोया होगा, मे बी बेटे को, बहन को, अब्बू को, किसी को बहुत कोई क्लोज रिलेटिव होगा खोया होगा. क्या कहते हैं लोग आके आपसे, मत रो, वो जो चला गया उसको तकलीफ होगी, राइट? एंड ऑन द कॉन्ट्ररी साइड याकूब अलैहिस्सलाम इतना रो रहे हैं कि उनकी आंखों की बिनाई चली गई है. और आपको गिल्टी फील कराया जाता है कि आप उदास क्यों हैं. अब आप जैसे रोबोट आप फौरन से ठीक हो जाए. ग्रीफ एक्चुअली इज अ प्रोसेस. ग्रीफ इज समथिंग जिसके साथ आपको वक्त गुजारना पड़ता है. वो जो अभी किसी ने कहा था ना कि दैट इज अ स्टेट ऑफ बीइंग काम. द स्टेट ऑफ बीइंग काम डज नॉट कम मैजिकली. कोई भी बाय बाय बर्थ काम और कंपोज सा इंसान नहीं होता. हाँ, जो लोग हमें बहुत काम एंड कंपोज नजर आते हैं ना, वो बहुत एफर्ट डाल के काम एंड कंपोज बनते हैं. एंड इट मीन्स कि अगर आज वो काम है ना तो एक टाइम पे वो केओस थे. उनकी लाइफ बड़ी केओटिक थी और वो बड़े एंशियस थे, राइट? सो इट इज नॉट समथिंग विच कम्स मैजिकली. सो अब हमने सीरा में तो देख लिए दो इवेंट्स. इफ वी वॉक थ्रू द कुरानिक लेंस के कुरान में कहाँ पे अल्लाह ताला बात करते हैं इमोशंस की, मेंटल हेल्थ की. सो आई थिंक कुरान इज लाइक, आप खोलें, आप उसको साइकोलॉजिकल लेंस से देखना शुरू करें, आपको हर आयत, हर अल्लाह ताला की तसल्ली, उसमें आपको साइकोलॉजिकल इफेक्ट नजर आएगा, आपको इमोशंस नजर आएंगे. So there are some of the words that I want to highlight here today, and I want कि आप लोग इस चीज को सेशन के बाद थोड़ा सा स्टडी जरूर करें कि इन अल्फाज का मतलब क्या है, इन आयात का मतलब क्या है. And if Allah is talking about those things, तो वो कहाँ पे actually exist करें. और and even if I'm going through things, am I being really hard on myself? ठीक है. So the first thing is एक वर्ड जो कुरान में आता है, that is हम. हम कहते हैं हम फियर्स को, एंजाइटी को कहते हैं, जो अभी हमने सीरा में भी कवर किया. हजन का वर्ड भी इस्तेमाल हुआ है कुरान में, दैट इज ग्रीफ, दैट इज सैडनेस. और डिप्रेशन के कॉमन सिम्टम्स क्या होते हैं? आपके ऊपर एक स्टेट है सैडनेस की, आपके ऊपर एक स्टेट है ग्रीफ की, आपके ऊपर एक स्टेट है जहाँ पे आप बहुत इनर क्रिटिक के साथ डील कर रहे होते हैं, हार्श इनर क्रिटिक होता है. आपको जिंदगी में ऐसे लगता है समझ नहीं आ रही. एंड जस्ट अ डिस्क्लेमर, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन क्लिनिकल एंड एग्जिस्टेंशियल डिप्रेशन. इसको इंशाल्लाह हम आगे कवर करते हैं. सो आई एम जस्ट टॉकिंग जनरली हियर कि आप इसको डिप्रेशन का नाम भी दे सकते हैं. जब भी कोई आपकी फीलिंग एसोसिएटेड है ना पास्ट से, अ लॉट ऑफ टाइम्स पीपल आर कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट द पास्ट. मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था, मेरा ये रिग्रेट है, गिल्ट है, आज से 10 साल पहले ये चीज हो जाती, वैसे हो जाता. एंड इट इज अफेक्टिंग योर प्रेजेंट. इट इज नोन एज डिप्रेशन. ठीक है. बट इफ इट इज रेलिवेंट टू द फ्यूचर, जैसे आप में से अगर कल किसी का पेपर है एंड दैट इज कॉन्स्टेंटली बॉदरिंग यू, पता नहीं कैसा होगा, अच्छा होगा नहीं होगा, मुझे आता होगा नहीं आता होगा, और वो एक अजीब सी टेंशन हो रही है, बहुत ज्यादा खौफ आ रहा है, बहुत ज्यादा वरी हो रही है. दैट स्टेट विच इज कनेक्टिंग यू टू द फ्यूचर इज एंजाइटी. एंड दैट इज द वेरी बेसिक डिफरेंस बिटवीन एंजाइटी एंड डिप्रेशन. ठीक है. आई होप एवरीवन इज fine with the terminologies. किसी को कोई मुश्किल हो रही है तो you guys can let me know.
ओके, सो द थर्ड वर्ड दैट इज यूज्ड इन कुरान इज गम, जो हम उर्दू में भी वर्ड इस्तेमाल करते हैं गम का। गम कहते हैं कंसीलिंग को, कवरिंग ऑफ समथिंग, इसको हम गम कहते हैं। जब आपका दिल ऐसे लगे ना कंसील हो गया, कवर हो गया किसी चीज से, समझ नहीं आ रही, क्लैरिटी नहीं हो रही, कंफ्यूजन हो रही है, दैट स्टेट कैन बी नोन एज गम। ठीक है। देन देयर इज अनदर वर्ड दैट इज असफ। दिस वर्ड मीन्स ग्रीफ दैट इज मिक्सड विद एंगर और रिग्रेट। कभी ऐसा होता है कि आप किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा आपको आप उदास भी होते हैं, और आपको एक सॉरो भी होता है, ग्रीफ भी होता है, बट दैट इज ऑल्सो अकम्पनीड विद एंगर और रिग्रेट। इसके एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। कुरान में जब मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पे गए एंड हारून अलैहिस्सलाम को उन्होंने कहा कि आप ये चीजें जो है ना हम थोड़ी देर के लिए देखें, बिकॉज आई हैव टू गो टू कोहे तूर, अल्लाह ताला ने मुझे बुलाया। और जब वो वापस आए और उन्होंने देखा कि मेरी कौम, मेरी नेशन जो है वो तो बुत परस्ती में दोबारा पड़ गई है, दे आर वर्शिपिंग अ काफ। ठीक है। तो वो जो उनकी स्टेट थी ना, दैट वाज नोन एज असफ। कुरान में अल्लाह ताला ने आयत यूज किया, वलम्मा रजा मूसा इला कौमी गदबाना आसिफा, एंड व्हेन मूसा रिटर्न टू हिज पीपल एंग्री एंड ग्रीव्ड। यानी कि उनको एक तो इस बात का आप कह सकते हो उदासी भी थी, ग्रीफ भी था, उनको दुख भी था इस बात का कि मेरी कौम किस चीज में पड़ गई है, एंड इट वाज आल्सो गुस्सा भी था कि कैसे ऐसे कर सकते हैं, ये थोड़ी देर के लिए वेट नहीं कर सकते थे। सो दैट इज अ फीलिंग दैट इज कंप्राइज्ड ऑफ बोथ द थिंग्स। आपका एंगर भी उसमें होता है और आपका ग्रीफ भी उसमें होता है। ये हमारी लाइफ के अंदर भी कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है, हम उदास भी होते हैं लेकिन एट द सेम टाइम में गुस्सा भी बहुत आ रहा होता है, राइट? And the last word that I want you guys to study after the session is bas. That is ba and sa. ठीक है? That means sadness that spreads all over. और ये वर्ड अल्लाह ताला ने इस्तेमाल किया है for याकूब अलैहिस्सलाम. The ayah is innama ashku bathi wa huzni ila Allah. I only complain of my suffering and my grief to Allah subhanahu wa ta'ala. Being a prophet, आप सोचें, वो इतना रो रहे हैं अपने बेटे की याद में कि उनकी आंखों की बिनाई चली गई है। आपने आज तक जिंदगी में कभी किसी इंसान को देखा है जो इतना गम से डील करा उसकी आंखों की बिनाई चली जाए? नहीं देखा। सो सोचे दैट वाज द हाइट ऑफ हिज ग्रीफ। हमने तो अभी तक वो देखा ही नहीं है चीज, और हम कहते हैं फौरन से कि ओ हो ये क्या कर दिया, ये तो अल्लाह से दूरी है, ये है वो है। क्या याकूब अलैहिस्सलाम को तवक्कुल नहीं था? बट ही वॉज अ ह्यूमन, ही हैड इमोशंस, अटैचमेंट थी। इस बात का डर था कि वो सही स्टेट पे होंगे भी या नहीं होंगे, ईमान पे होंगे भी या नहीं होंगे, और वो जो अटैचमेंट है वो उनको ग्रीफ में लेकर जा रही थी। गाइस, कैन यू प्लीज टर्न ऑफ योर माइक? आई एम गेटिंग वेरी डिस्ट्रैक्टेड। Alright, so let's differentiate between के clinical और existential depression में फर्क क्या है, because there is a very thin line and this topic is very sensitive. At times हम ना extremes में चले जाते हैं। Clinical depression एक medical condition है, chronic medical condition. It's not an emotional state. हम लोगों ने डिप्रेशन के वर्ड को बहुत कैजुअली इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। आप किसी रिलेशनशिप में हैं, वो बंदा आपको रिप्लाई नहीं करा कुछ दिन, आप कहते हो ओ माय गॉड आई एम फीलिंग वेरी डिप्रेस्ड। आपका रिलेशनशिप खत्म हो गया, आप कहते हैं आई एम फीलिंग वेरी डिप्रेस्ड। किसी ने आपसे बदतमीजी कर लिया, आई एम फीलिंग वेरी डिप्रेस्ड। दिस इज नॉट हाउ डिप्रेशन वर्क्स। डिप्रेशन का एक प्रॉपर डीएसएम क्राइटेरिया है। इफ यू डोंट मीट दैट, यू डोंट हैव डिप्रेशन, जिसके अंदर आपकी परसिस्टेंट कंसिस्टेंट स्टेट होनी चाहिए सैडनेस की, उसके अलावा आपको इमोशन फेस ही नहीं कर पा रहे आई थिंक फॉर अबाउट 2 वीक्स, जो भी उसका क्राइटेरिया है। एंड देयर आर सम अदर सिम्टम्स एज वेल। लॉस ऑफ एपिटाइट है, स्लीप डिप्रिवेशन है, स्लीप प्रॉब्लम्स हो रही हैं, वेट शायद आपका गिर रहा है या बहुत ज्यादा बढ़ गया है, आप सैडनेस फील करें, उसके अलावा और कुछ फील नहीं कर पा रहे, देयर इज नो मीनिंग, और बहुत सारे सिम्टम्स हैं। तब जाके फिर आपको डायग्नोज किया जाता है कि यू आर क्वालिफाइड टू हैव क्लिनिकल डिप्रेशन।
बाकी जो ये ना हर कोई बंदा कह रहा है मुझे डिप्रेशन है, डिप्रेशन डिप्रेशन है, दैट इज नॉट डिप्रेशन, दैट इज जस्ट अ स्टेट, दैट इज जस्ट अ इमोशनल स्टेट, दैट इज जस्ट, क्या आप कह सकते हो कि एक टेम्परेरी स्टेट है जो सबके साथ होती है। वी ऑल फील डिप्रेस्ड एट टाइम्स और सैड एट टाइम्स, मुझे भी सैडनेस होती है, मुझे भी एंजाइटी होती है एट टाइम्स, बट डज इट मेक मी अ क्लिनिकली डिप्रेस्ड पर्सन? नो। यहाँ पे डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी है। आपको क्लिनिकल डिप्रेशन तब होता है जब वो आपको डिसफंक्शनल बना रहा है। फॉर इंस्टेंस आई हैड टू प्रेजेंट टुडे हियर, और मुझे इतनी ज्यादा डिप्रेशन हो कि मैं ये प्रेजेंट ही ना कर सकूं, मैं खाना ना खा सक रही हूँ, मैं अपना ख्याल ना रख सक रही हूँ, जो बेसिक नेसेसिटीज हैं, टूथब्रश करना, हाइजीन से रिलेवेंट चीजें हैं, आप वो नहीं कर पा रहे। आप डिसफंक्शनल हो रहे हैं, जो आपकी डेली रूटीन है वो बुरी तरह अफेक्ट हो गई है। आपका स्कूल है, यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, वर्क है, आपको पता है वहां जाना है, लेकिन आप जा ही नहीं पा रहे हैं। इतना ज्यादा आपके थॉट्स ने, आपकी स्ट्रेस ने आपको वे डाउन कर दिया है, दैट कैन बी क्लिनिकल डिप्रेशन। लेकिन थोड़ी देर गम फील हुआ, बाद में जाके आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं, दैट इज नॉट डिप्रेशन, दैट इज एग्जिस्टेंशियल डिप्रेशन। एंड मोस्ट ऑफ अस आर फेसिंग एग्जिस्टेंशियल डिप्रेशन। एग्जिस्टेंशियल डिप्रेशन क्या होता है? यू डोंट हैव अ पर्पस, यू डोंट हैव अ विजन, आपको नहीं पता जिंदगी में क्या करना है, आपका हायर पर्पस क्या है, यू आर जस्ट गोइंग विद द फ्लो, जिंदगी जो ऑफर करी है वो हो रहा है। सोशल मीडिया पे सारा सारा दिन गुजर रहा है, कोई एम नहीं है, कुछ नहीं पता गोल्स क्या है, क्या अचीव करना है, और फिर तो डिप्रेशन होगा। दैट इज अ लैक ऑफ पर्पस, दैट इज अ लैक ऑफ कनेक्शन विद अल्लाह सुब्हानहू व तआला, एंड दिस इज वेरी कॉमन इन आवर यूथ, राइट? सो बेसिकली हमने कुछ मिथ्स तो ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे, सो आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट डिटेल, बट आई वुड लाइक टू आस्क यू गाइस कि आप लोगों का कोई बहुत स्ट्रांग, ऑब्वियसली आप लोगों को तो उस टाइम पे अभी नहीं पता होगा कि इफ इट्स अ मिथ और समथिंग, लेकिन जस्ट शेयर हियर फ्रीली विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ कि मुझे जज किया जाएगा, कोई ओपिनियन रिगार्डिंग मेंटल हेल्थ, इस्लामिक मेंटल हेल्थ, जो आपको वे डाउन करता है और आपके जहन में एक सवाल आता है कि हाँ मुझे लगता है ऐसा है, वो कुछ भी हो सकता है। जस्ट गिव, लेट मी गिव यू गाइस एन एग्जांपल, जैसे लेट मी गिव यू गाइस एन एग्जांपल थ्रू अ स्टोरी, आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। सो वन ऑफ माय क्लाइंट्स केम टू मी अभी कुछ टाइम पहले, एंड शी हैड अ कंसर्न। उन्होंने मुझसे कहा कि ना, मेरी एक दोस्त है, वो कुरान पढ़ती है, वो नमाज भी पढ़ती है, और वो कोर्सेज भी करती है, अच्छे जो स्पिरिचुअल कोर्सेज होते हैं, और उसका बड़ा अच्छा ईमान है, लेकिन उसको साथ साथ डिप्रेशन है और उसको सुसाइडल थॉट्स आते हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि एक बंदा कुरान पढ़ रहा है, नमाज पढ़ रहा है, और वो अल्लाह ताला के साथ उसका कनेक्शन भी है, वो बंदा डिप्रेस्ड कैसे फील कर सकता है? ऐसा तो नहीं हो सकता। सो आई एम स्टॉपिंग हेयर, और इसको हम प्रोब करेंगे इन डिटेल। आई वांट यू गाइस टू शेयर फ्रीली, आप लोगों के क्या कंसर्न्स हैं? ओके, मे बी आई थिंक वो दिल से ना करते हो, जस्ट फॉर्मेलिटी, मे बी आई एम डिस्टेंट फ्रॉम हिम। ये जो लोग शेयर करते हैं ना ओपनली, ये बहुत ब्रेव होते हैं, क्योंकि इनको जजमेंट का खौफ नहीं होता, एंड इट्स अ वेरी गुड थिंग। At times, I lost tawakkul when dua is not accepted. I lost my one relation. I have feelings for almost 13 years. I did no harm, only praying, but still I'm barehanded and not. Same as you gave the example, getting anything, the hardships come because we are distant from Allah. Na sukoon, Allah na wo, how to make a strong connection with Allah. एक महीने मेरी इस पर डिप्रेशन है बहुत सालों से। Okay. I'm not sure if the recording would be available or not. I can ask the moderator. Guys, please turn off your mic. Okay, so उन्होंने जब मेरे से ये सवाल पूछा, and I want you guys to understand this thing very, very deeply, attentively.
बिकॉज दिस सेशन इज जस्ट सॉर्ट ऑफ आपको जनरल चीजें पता चल रही हैं। असल वर्किंग इसके बाद होगी जब आप लोग इसके अंदर डीप जाएंगे और इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। सो जब उन्होंने मेरे से ये सवाल पूछा तो ऑब्वियसली मेरा एज सच कोई ओके जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके सो गाइस वी हैव 10 मिनट्स, तो इसको हम थोड़ा सा कट शॉर्ट करते हैं एंड इंशाल्लाह फिर आपके जो सवाल जवाब होंगे उसको हम उसमें कवर कर लेंगे। सो व्हेन शी आस्क्ड मी एक्चुअली, तो ऑब्वियसली वो डायरेक्टली मेरे पास नहीं आई थी तो मुझे नहीं पता था उनके क्या रीजंस हैं, लेकिन हमने थोड़ा सा उसको प्रोब किया एंड आई मेड हर अंडरस्टूड के मेंटल इलनेसेस के सवेयर रीजंस होते हैं, मल्टीपल रीजंस होते हैं, इट्स नॉट जस्ट स्पिरिचुअल फैक्टर्स। एंड आई वांट यू टू गाइस अंडरस्टैंड दिस थिंग टू कि हमारे बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं मेंटल इलनेसेस में, जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, सोशल फैक्टर्स होते हैं एंड देन स्पिरिचुअल फैक्टर्स भी होते हैं। अब उनके केस के अंदर क्या था कि her parents were very abusive, and this is one of the prominent reasons of someone having mental issues, illnesses. If the moderator is here, please mic off कर दें। Uh, Actually, I don't have the option to turn off the mics of everyone. Shahid Ahmed, can you please turn off your mic? It's creating disturbance. ओके सो ये एक बहुत प्रोमिनेंट रीजन है, आपके अटैचमेंट स्टाइल्स, आपके पेरेंटिंग स्टाइल्स कैसे रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर इंस्टेंस अगर एक माँ है जो फॉरेन चीजों को बहुत जल्दी घबरा जाती है, ठीक है, वो बच्ची या वो बच्चा जो है बचपन से ही लर्न कर लेगा कि मुझे कोई भी अपॉर्चुनिटीज लाइफ में मिलेगी, कुछ भी होगा तो मैंने फौरन से एंग्शियस होना है, मेरा रिस्पॉन्स यही होना चाहिए। अब उसका क्या कसूर है इस बात में कि उसने एनवायरनमेंट से वो चीज सीखी है, या फिर जैसे आजकल हम देखते हैं गजा में जो चीजें हो रही हैं, डू यू थिंक कि उन लोगों का तवक्कुल नहीं है? नो, दैट इज बिकॉज ऑफ द एनवायरनमेंट। एट टाइम्स ऐसी वीडियोज आ रही होती है, जबान से वो कह रहे होते हैं हस्बी अल्लाह एंड दे आर सेलिब्रेटिंग कि अगर उनके एनवायरनमेंट में किसी को शहादत मिल जाती है, बट एट द सेम टाइम उनको पैनिक अटैक्स भी हो रहे हैं और वो रो भी रहे हैं। अगर वो पैनिक अटैक्स हो रहे हैं तो फिर ये तो ईमान के खिलाफ होना चाहिए ना। दैट इज नॉट द केस। आपके फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज डिफरेंट होते हैं और बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको आपने कंसिडर करना होता है, फॉरन से जंप करके कंक्लूजन पे नहीं आना होता ओके लो स्पिरिचुअलिटी। इसीलिए a lot of times people come to me और उनका बड़ा अच्छा तवक्कुल होता है, लेकिन at the same time they are dealing with depression, they are dealing with anxiety, और बहुत बुरी तरह की anxiety होती है उनको। तवक्कुल बेसिकली होता क्या है, आई एम जस्ट रैपिंग इट अप हियर। हम समझते हैं तवक्कुल है जैसे मैं अगर किसी से कहूँ आप तवक्कुल करें अल्लाह ताला पे सब ठीक हो जाएगा, तो वो रिपीट करते रहे हस्बी अल्लाह अल्लाह ताला सब ठीक कर दो सब ठीक हो जाएगा। दिस इज नॉट तवक्कुल। तवक्कुल की डेफिनेशन हमारी बहुत गलत है। तवक्कुल इज समथिंग व्हिच मींस दुआ एंड एक्शन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड तवक्कुल जो उसकी कॉन्टेक्स्ट ये है कि ही सेज टाई योर कैमल फर्स्ट एंड देन हैव तवक्कुल। ऐसा नहीं है कि आप किसी डेजर्ट में जाएं और आप कहें कि मैंने अपना ऊंट खुला छोड़ दिया है और मेरा अल्लाह पे तवक्कुल, अल्लाह ताला इसकी हिफाजत करेंगे। दैट इज नॉट द डेफिनेशन ऑफ तवक्कुल। तवक्कुल है कि पहले आप उसको किसी सिक्योर जगह पे बांधें और फिर आप रिलैक्स करें कि अल्लाह ताला अब इसका ख्याल रखेंगे। सो व्हेन यू आर struggling through something and you are not even taking medication, you are not even going to the professional, you are not even going to anyone जो आपको उसके अंदर हेल्प कर सकता है, जिसको अल्लाह ताला ने इल्म दिया उस चीज में, that is you going against the definition of tawakkul.
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने पूछा कि शैल वी सीक ट्रीटमेंट्स, तो अल्लाह के नबी ने कहा यस, क्योंकि अल्लाह ताला ने कोई डिजीज ऐसी क्रिएट नहीं की जिसका ट्रीटमेंट ना हो। अब आप सोचें कि जब ये सवाल वो पूछ रहे हैं, वेयर इट इज कमिंग फ्रॉम। मैं अगर पूछती हूँ ये सवाल कि हमें ट्रीटमेंट लेना चाहिए, इट मीन्स मेरे दिल में कहीं ना कहीं डाउट है। उस डाउट को क्लियर करने के लिए मैं पूछ रही हूँ ना, कि हो सकता है हम तो तवक्कुल वाले लोग हैं, हम तो अल्लाह ताला पे रिलाई करने वाले हैं, तो हमें तो डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए इन चीजों के ऊपर। लेकिन अल्लाह के नबी ने क्या कहा है कि नहीं, ट्रीटमेंट लो, दैट इज अ पार्ट ऑफ योर तवक्कुल, एंड दैट इज अ सेपरेट स्टोरी कि तवक्कुल बिल्ड कैसे करते हैं। जस्ट बिफोर एंडिंग, ट्रीटमेंट्स पे थोड़ा सा हम फोकस कर लेते हैं। आई होप आई हैव 5 मिनट्स। सबसे पहले तो देयर शुड बी अ कनेक्शन विद कुरान, बिकॉज कुरान में अल्लाह ताला कहते हैं कि बीमार दिलों के लिए शिफा है। एंजाइटी आपको कहाँ फील होती है? आपके आपके चेस्ट में फील होती है, टाइटनेस फील होती है, राइट? जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की तो उन्होंने क्या कहा? रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह ताला एक्सपैंड माय चेस्ट। और जो लोग डिप्रेशन से, एंजाइटी से गुजरते हैं, दे कैन रिलेट टू दिस फीलिंग। आपको लगता है आपकी जो सीना है वो बहुत घुटन फील हो रही है वहां पे, दिल बहुत घबरा रहा है। और अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इसके अंदर बीमार दिलों के लिए शिफा है। इट कुड बी साइकोलॉजिकल, इट कुड बी इमोशनल, इट कुड बी स्पिरिचुअल, इट कुड बी फिजिकल, कुछ भी हो सकता है। हर चीज का शिफा जो है वो कुरान में है। एंड कुरान आपको इनवाइट करता है कि अगर आपके पास किसी चीज की नॉलेज नहीं है तो अहले इल्म से पूछ लो। अहले इल्म का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि जो लोग कुरान पढ़ाते हैं। अहले इल्म का मतलब है मे बी द डॉक्टर, मे बी द प्रोफेशनल, मे बी द साइकोलॉजिस्ट, जिसको अल्लाह ताला ने इस चीज के अंदर इल्म दिया है, राइट? अदर देन दैट, वन थिंग विच आई कैन रिकमेंड यू गाइस, जो आप लोग खुद भी कर सकते हैं, दैट इज सेल्फ अवेयरनेस। अपनी अपने लिए, खुद के लिए इल्म हासिल करें। देयर आर टन्स ऑफ फ्री लेक्चर्स ऑन यूट्यूब, देयर आर टन्स ऑफ बुक्स दैट यू कैन बाय। अगर आप नहीं भी लेना चाहते, सेल्फ हेल्प की जर्नी पे निकल जाए। इवन दो आई डोंट फुली रिकमेंड दैट, एट टाइम्स आपको जरूरत होती है कि कोई आपको हेल्प कर सके, बट फिर भी अपने लिए अवेयरनेस तो क्रिएट करें ना, कि किस तरह से ये चीजें वर्कआउट करती हैं, मुझे किस तरह से इस चीज से निकलना है। तभी जाके फिर आपको समझ आना शुरू होती है। जर्नलिंग करें, अपने थॉट्स को लिखें। इवन बिफोर क्रिएटिंग अस, अल्लाह ताला क्रिएटेड पेन। हमारा रिलेशनशिप है पेन के साथ, दैट इज वेरी डिवाइन। आज जब आप लिखते हैं, कैथारसिस होता है, आपको क्लैरिटी मिलती है। बहुत दफा ऐसा होता है दिमाग में जो चीजें होती हैं, दे नीड अ वे आउट। उनको जब आप लिखते हैं, आपको एकदम से रिलीज फील होता है, इमोशनल रिलीज फील होता है। देन दैट इज कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग। नेगेटिव थॉट्स को चैलेंज करें, उनकी एविडेंस को चेक करें, कितने ट्रू हैं कितने नहीं है, राइट? एक बंदे को ये थॉट आ रहा है कि अल्लाह ताला मुझसे प्यार नहीं करते, उसकी एविडेंस क्या है? क्या एविडेंस है आपके पास? एविडेंस ढूंढें, बिकॉज योर ब्रेन इज गोइंग टू वर्क ऑन द थॉट्स और द एविडेंस यू आर गोइंग टू प्रोवाइड। और मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम एंजाइटी डिप्रेशन से गुजर रहे होते हैं, हमारे पास एविडेंस कोई नहीं होती, राइट? क्वेश्चन इट। ये थॉट आ रहा है, इसकी बेसिस क्या है? फैक्ट्स को पढ़ें। अगर आप कह रहे हैं कि फॉर इंस्टेंस मेरी जॉब चली जाएगी, आपके पास क्या एविडेंस है कि आपकी जॉब चली जाएगी? और अगर चली जाएगी तो इसके बाद जॉब नहीं मिलेगी, राइट? सो हियर आई एम जस्ट रैपिंग इट अप विद दिस नोट, कि अगर आपके पास कभी भी, एंड सिंस यू गाइज आर हियर, आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीफ कि अल्लाह ताला जब भी आपको किसी चीज को समझाते हैं, किसी चीज से गुजारते हैं, दैट हैज अ पर्पस। आप लोग अगर ये चीज सुन रहे हैं, मे बी समवेयर अलोंग द लाइन यू विल मीट समवन जो किसी इस चीज से गुजर रहा होगा। तो अगर आपको अवेयरनेस ही नहीं, आपको नहीं पता होगा कैसे डील करना है, so listen very attentively to that person. मजाक नहीं उड़ाएं, be compassionate towards yourself, towards others as well. And स्टडी के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी को सुनते थे तो किस तरह सुनते थे, और हम लोग भूल गए हैं कि किसी को सुनना कैसे है। दिस इज वन ऑफ द रीजंस हमारी सोसाइटी में डिप्रेशन, एंजाइटी बहुत बुरी तरह से बढ़ी है। सो दैट इज इट। आई एम डन, आकिफ। Thank you so much, ma'am, for your wonderful insights. It was so nice to hear you. Basically क्वेश्चन आंसर सेशन हमारा इस तरह से वर्क करेगा कि हमने आपके साथ प्री एवेल्यूएशन फॉर्म एक शेयर किया था, एंड वी हैव Okay. गेदर्ड क्वेश्चंस, एंड उसमें से जो हाईली रेलिवेंट क्वेश्चंस हैं सिर्फ वही जो हैं हमारी मॉडरेटर हैं फातिमा रसूल, शी विल बी आस्किंग फ्रॉम द स्पीकर एंड द स्पीकर विल बी आंसरिंग दोज relevant questions. And if we have time in the last 15 minutes, we may have open Q&A from the
audience in this session. So the purpose of doing this is to maintain the relevancy and also to discuss those questions which most of us experience and feel. So now I would request Fatma Rasool to ask questions from our speaker. Fatma Rasool, are you there in the meeting? Assalamualaikum everyone. I'm Fatima Rasool and today I'll be moderating the question and answer session for this webinar. Okay, as Akif said, we will start from the commonly asked questions in the pre-evaluation form. The first question is, what to do if your family or your social circle is not supporting your mental health journey? When they start criticizing you for seeking help or addressing your problems? When people say Deen is enough? Okay, such a nice question, and this is a very, very relevant question. देखो पहले तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं कि आई एम गोइंग टू टेस्ट यू विद फियर, भूख और बहुत सारी चीज़ें. देन इन अनदर आया अल्लाह सुब्हानहू व तआला सेज कि क्या आप कहेंगे कि मैं ईमान ले आए तो ये काफ़ी होगा विदाउट अस टेस्टिंग यू. कॉन्टेक्स्ट इसका ये. So there are going to be tests. पहले तो अपने आप को प्रिपेयर करेंगे. Life is not supposed to be a bed of roses. It is going to be difficult. Secondly, अब आप ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं कि अगर कोई इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करता तो आप क्या कर सकते हैं? आप ये कर सकते हैं कि आप पहले तो अपने आप को एजुकेट करें. जब तक आपने अपने आप को एजुकेट नहीं किया, फैमिली को भी एजुकेट नहीं कर सकते. ठीक है. एंड स्टॉप ब्लेमिंग. मैंने बहुत कॉमनली ये चीज़ देखी है कि पीपल स्टार्ट ब्लेमिंग. मेरी अम्मी ऐसी है, मेरे अब्बू ऐसे हैं, वो मुझे ये कहते हैं, वो कहते हैं. बस ब्लेम कल्चर में हम पड़ जाते हैं और जो एनर्जी हमने एक राइट वे में लगानी थी वो हम लगा नहीं पाते. ठीक है. A lot of us, a lot of us have those families जहाँ पे हमारी इन चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं किया जाता. If I'm being really transparent, because I want you guys to understand that, my father used to think कि मैं लोगों का टाइम और लोगों के पैसे जाया कर रही हूँ. Because I just listen. What am I doing? And he used to ask you तुम्हारा कैसा काम है? That's fine. कोई बात नहीं. Because they belong to a different generation और वो उन चीज़ों को नहीं अंडरस्टैंड करते. But alhamdulillah, with passage of time, now he is more understanding and he's like अच्छा ये भी कोई काम है. But when I started doing it, he was like तुम तो क्या करती हो, ये क्या क्या चीजें हैं, बस तुम सुनती हो और बातें करती हो and people are paying you for that, right? इसी तरह से अगर आप ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, अपना फोकस चेंज करें. ऐसा हो ही नहीं सकता कि अल्लाह ताला ने आपको किसी डिफिकल्टी में डाला है या आपके ऊपर कोई अफ्लिक्शन आई है, कैलामिटी आई है तो सारे दरवाजे बंद हो जाएं. There is going to be a friend, there is going to be a relative, there is going to be a cousin, there is going to be someone जिससे आप बात करेंगे तो थोड़ा सा रिलीफ फील होगा. Hold on to that person, उससे शेयर करें. ठीक है. ये भी नहीं हो सकता तो अपनी यूनिवर्सिटीज में, आई थिंक हर यूनिवर्सिटी में देयर इज अ साइकोलॉजी डिपार्टमेंट. जस्ट गो देयर. ठीक है. और वहां पे जाके कह दे मुझे हेल्प चाहिए, मुझे किसी से डिस्कस करना है. वहां पे आपको फ्री मेंटल हेल्थ सर्विसेज भी मिल रही होती हैं. ठीक है. सो अपने आप को एजुकेट करें बिकॉज हो सकता है अल्लाह ताला आपको इस चीज से गुजारी इसलिए रहे आप दूसरों के लिए खैर का बाइस बन सके. ठीक है. घर वालों से एक्सपेक्ट करना छोड़ दें वो मुझे हर चीज में अंडरस्टैंड करें. हो सकता है कि वो आपको किसी और चीज में बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करे तो इस चीज में ना करे तो एंड इट्स कम्प्लीटली फाइन. आपने वो बैरियर ब्रेक करना है कि कल को आप ऐसी जनरेशन लीड कर सकें जहां पे हो सकता है आपके बच्चे अगर आके आपको ये बात बताएं तो यू वुड बी द वन, यस मैंने ये चीज स्ट्रगल की थी, मुझे पता है मैंने तुम्हें कैसे हेल्प करना है. ठीक है. सो डू दैट. आई होप दिस आंसर्स द क्वेश्चन इफ आई हैव केप्ट इट वेरी शॉर्ट. Okay, Afi, thank you. Moving on to the next question. And the question is, what is Islam's perspective about self-worth and self-love? And when should we consider seeking professional help rather than just relying on dua or tawakkul? Okay, so there is two parts to this question. First is self-love and self-worth, right? Very good question. आप अल्लाह ताला से जब मोहब्बत करना शुरू करते हैं ना, आपको अपने आप से ऑटोमेटिकली मोहब्बत होना शुरू हो जाती है. एंड वी आर लिविंग इन अ सोसाइटी जहाँ पे आपके अंदर सेल्फ हेट्रेड इम्पोज किया जाता है, इनकलकेट किया जाता है. आप सोशल मीडिया उठा के देखें, आपको क्या सिखाया जा रहा है? ये प्लास्टिक सर्जरी करा लो, ये कपड़े पहन लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो. आपको बार बार ये रियलाइज कराया जा रहा है कि जैसे आप हैं आप अच्छे नहीं हैं, ये चीजें करेंगे तो आप अच्छे बन जाएंगे. सेल्फ लव इज नॉट द एब्सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी. सेल्फ लव का मतलब ये है आपने अपने आप को डेंजर से बचाना है, गुनाहों से बचाना है और अल्लाह ताला की
इताअत में लेकर आना है, ताकि जितना आप अल्लाह के करीब हो सकेंगे उतनी चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। और अल्लाह ताला आपकी सेल्फ वर्थ को कभी डैमेज नहीं होने देते। अल्लाह ताला नहीं चाहते हैं कि आपका वो जो सेल्फ रिस्पेक्ट का एलिमेंट है वो हर्ट हो। अल्लाह ताला नहीं चाहते। अल्लाह ताला को आपकी इतनी कदर है, शायद ही किसी को हो ही नहीं सकती, आपको अपनी भी नहीं कदर हो सकती। एट टाइम्स जब मेरे पास लोग आते हैं तो उनके अंदर सेल्फ हेट्रेड का कॉम्पोनेंट बहुत ज्यादा होता है। मैं अपने आप से बेजार हूँ। आप सोचो, आप जब खुद भी अपने आप से बेजार होते हो, अल्लाह ताला इज द वन हु इज स्टिल लविंग यू, ही इज स्टिल प्रोवाइडिंग यू, ही इज स्टिल ओपनिंग द डोर्स फॉर यू। तो जब आप अल्लाह से मोहब्बत करना शुरू करते हैं ना, एंड दैट कैन ओनली हैपन व्हेन यू पॉन्डर अपॉन द वर्सेस ऑफ कुरान, जब आप अल्लाह ताला की किताब के साथ वक्त गुजारते हैं, आपको अपने आप से खुद ही मोहब्बत होने लग जाती है। आपका दिल करने लग जाता है कि आप वो काम करें जो अल्लाह ताला को पसंद है, और वो काम छोड़ें जो अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। बिकॉज ये दैट हैज टू कम फ्रॉम द इनसाइड। आपकी कोई फ्रेंड लिस्ट में कोई ऐसी दोस्त है जो आपको बहुत पसंद है, आपका ऑटोमेटिकली दिल करता है कि आप कुछ ऐसा करें जिससे वो खुश हो जाए, राइट। एंड द सेकेंड पार्ट आपने पूछा था, इफ यू कैन रिपीट दैट, तवक्कुल से रिलेवेंट क्या था? Yes, Sapi, I will repeat that. The question was, when should one consider seeking professional help rather than just relying on dua or tawakkul? ओके, दिस इज वेरी गुड, वेरी नाइस क्वेश्चन। आई थिंक हम लोगों ने ना इस चीज के साथ बहुत स्टिग्मा अटैच कर दिया कि अनलेस अनटिल किसी को पैनिक अटैक नहीं हो रहा, कोई बहुत ही बुरी तरह से मिजरेबली जो है ना वो गुजर नहीं रहा किसी तकलीफ से, तब तक उसे प्रोफेशनल हेल्प लेने की जरूरत नहीं है, विच इज अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट। थेरेपी क्या है? बेसिकली थेरेपी इज अ साइंस जो आपको एक बेहतर इंसान बनाने में या बनने में हेल्प करती है। इफ यू आस्क मी, आई स्टिल टेक थेरेपी। If you ask my therapist, she still takes therapy. If you ask her therapist, she still takes therapy. तो ये जो आपकी जो एक होती है ना सेल्फ ग्रोथ की जर्नी जो होती है, ये तो कभी खत्म होनी ही नहीं चाहिए। इट कैन बी इन अ फॉर्म ऑफ थेरेपी, इट कैन बी इन अ फॉर्म ऑफ मेंटोरशिप। अब आप देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त पे थेरेपी ही देते थे, काउंसलिंग ही थी वो। एंड पीपल यूज्ड टू कम नरेट देयर इश्यूज एंड गेट हेल्प। वो क्या है? वो काउंसलिंग है। तो जब आप खुद से ही इतने सेल्फ सफिशिएंट होना चाह रहे हैं कि हर चीज में जो खुद फिगर आउट करनी है, दिस इज नॉट हाउ थिंग्स वर्क। वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड जहाँ पे हमें दूसरों की जरूरत है। मुझे एट टाइम्स दूसरों की जरूरत होगी। मैं हो सकता है 100 लोगों के मसले हल कर सकती हूँ, लेकिन मैं अपना मसला हल नहीं कर सकती, बिकॉज आई ऑल्सो हैव दैट नीड टू बी अंडरस्टूड, राइट। सो आई विल गो बैक टू माई मेंटोर्स, आई विल गो बैक टू माई थेरेपिस्ट, यार ऐसे हो रहा है, ये हो रहा है, मुझे ये बताओ कैसे करना है। जब आप इल्म हासिल करना शुरू करते हैं, उसमें तो कोई स्टॉप नहीं होता। आप स्कॉलर्स को देखें, वो ये नहीं कहते थे कि अब मैं स्कॉलर बन गया हूँ तो अब मैंने किसी से नहीं सीखना। वो सीखने की जर्नी खत्म ही नहीं करते थे। तो दैट इज नॉट समथिंग कि कुछ बहुत बुरा होगा तो लें। आप पहले से ही लेना शुरू करें, अपनी जात को पहचाने। हर इंसान के बाय डिफॉल्ट कुछ कोपिंग मैकेनिज्म्स होते हैं जो हेल्दी नहीं होते। कभी कभी आपके अंदर लैक ऑफ पेशेंस होता है, अटैचमेंट स्टाइल्स आपके सही नहीं रहे होते, आपको पेरेंटिंग स्टाइल्स में इश्यूज होते हैं, आपको समझ नहीं आ रही होती नेविगेट कैसे करना है। सो इट्स जस्ट अ साइंस विच हेल्प्स यू। कंसिडर इट, टेक इट। Okay, Api, thank you for your insightful answer. The next question is, how should one maintain strong tawakkul even when he is facing difficult time and feel like his dua isn't being accepted? ओके, सो देयर इज दिस हदीस के एक इंसान की दुआ कबूल होती रहती है, लेकिन फिर वो अर्जेंसी क्रिएट करता है और कहते हैं मेरी दुआ कबूल नहीं हुई। तो अल्लाह ताला को अर्जेंसी नहीं पसंद। अल्लाह ताला को ये नहीं पसंद कि हम फौरन से कह देंगे मेरी दुआ कबूल नहीं हुई, बिकॉज दुआ इज ऑलवेज एक्सेप्टेड। उसकी फॉर्म्स डिफरेंट होती हैं। कभी कभी हम दुआ कर रहे होते हैं तो अल्लाह ताला हमें किसी और फॉर्म में वो चीज़ दे देते हैं, लेकिन हम अटक जाते हैं कि हमें वही चीज़ चाहिए। ठीक है। सेकेंडली, आपको ऐसा लग रहा हो, आई मिस द क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन था आपका दुआ से रिलेटेड? How to maintain strong tawakkul when you're ओके, facing difficult times? ओके, ठीक है। ये बहुत अच्छा सवाल है कि हाउ टू मेंटेन स्ट्रॉन्ग तवक्कुल। पहले तो अंडरस्टैंड करें, इन ऑर्डर टू हैव स्ट्रॉन्ग तवक्कुल यू हैव टू बी द वन जिसका पहले वीक तवक्कुल हो। इफ आई एम ट्राइंग टू लर्न अ स्किल, इट मींस देयर इज एन एब्सेंस ऑफ दैट स्किल, और अब मुझे उसको ठीक करना है। तो हैविंग लो तवक्कुल इज नॉट समथिंग टू बी ashamed of. जस्ट एक्सेप्ट इट कि ठीक है मेरा तवक्कुल इतना अच्छा नहीं है, बिकॉज अल्लाह ताला को ना हम पसंद है ऑनेस्टी के साथ। हमें अल्लाह ताला को हमारा ऐसा रिलेशनशिप नहीं चाहिए कि हम अल्लाह के पास जाएं और अल्लाह से कहें अल्लाह ताला मुझे आपसे बहुत मोहब्बत है, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। दिल में ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। आपको अगर अल्लाह से मोहब्बत नहीं भी फील हो रही ना, जाएं और अल्लाह से कहें अल्लाह ताला मुझे नहीं फील हो रही मोहब्बत,
आई वॉन्ट टू हैव गुड तवक्कुल, लेकिन नहीं हो पा रहा है मुझसे, मुझे नहीं समझ में आ रही। बी ऑनेस्ट इन द कॉन्वर्जेशन, और सबसे ज्यादा इनफॉर्मल हम होते भी अल्लाह ताला के साथ ही हैं। झूठ बोल रहे होते हैं वहां पे, अल्लाह ताला आई रिलाई ऑन यू, लेकिन नहीं है, रिलायंस है ही नहीं। सो व्हेन आई यूज्ड टू हैव वेरी लो तवक्कुल, आई यूज्ड टू से हिम कि अल्लाह ताला मेरा तवक्कुल अच्छा नहीं है, आई नो दैट मेरे से नहीं हो रहा तवक्कुल, बट आई वांट टू बिल्ड दैट, यू मेक मी बिल्ड इट। और फिर अल्लाह ताला आपको अपॉर्चुनिटीज देते हैं। जब आपने किसी एक्सट्रीम सिचुएशन में तवक्कुल करना होता है ना, यू स्टार्ट स्लो, यू स्टार्ट स्मॉल, छोटी छोटी चीजों में तवक्कुल करके देखते हैं। और छोटी छोटी चीजों में तवक्कुल कैसे करते हैं? छोटी छोटी दुआओं के साथ। आप कहते हैं अल्लाह ताला आई वांट टू ईट दिस थिंग, अल्लाह ताला आई वांट दिस थिंग। जब वो आपकी जिंदगी में, और आपने वो किसी को बताया नहीं है, वो चीज जब आपकी जिंदगी में होगी, दैट वुड इंक्रीज योर तवक्कुल कि यार ये तो मैंने सिर्फ अल्लाह ताला से मेंशन किया था, ये कैसे हो गया। एंड देन नोटिस इट, नोटिस द पैटर्न, लिखें उसको कहीं ताकि आपके दिमाग को याद रहे। एविडेंस निकालें पास्ट में से, कोई ऐसा मसला जिसमें आप फंसी हुई थी, फंसे हुए थे, नहीं निकला जा रहा था, हु मेड दैट सिचुएशन बेरेबल, और किसने निकाला। आपके दिमाग को एविडेंस चाहिए, तभी वो तवक्कुल करेगा, राइट? सो इन ऑर्डर टू हैव तवक्कुल इन एनीथिंग, you need to start small and notice it, recognize it, learn it, and revisit it, right? Exactly, Afi. Okay, the next question is, how can we differentiate between mental health conditions and spiritual struggle according to Islamic perspective? Mental and spiritual? Yes, as Okay, in ठीक। spiritual struggle and mental health conditions. Okay, I have a very different opinion about that, and हो सकता है कुछ लोग उस चीज़ से agree ना भी करें, but obviously everyone has subjective opinion, और मेरा इस चीज़ के बारे में opinion है। This is not something जिसको हम बहुत clearly identify कर सकते हैं, ये mental health struggles हैं, spiritual concerns हैं, ये physical concerns हैं। These all healths are connected. आपकी spiritual health, आपकी mental health, emotional health, आपकी जितनी भी health है ना, वो सारी connected है आपस में। एक अफेक्ट होती है, दूसरी ऑटोमेटिकली अफेक्ट होती है। सो इट्स नॉट अ वेरी वेरी प्रोमिनेंट थिंग कि ये चीजें। हाँ, कुछ डिसऑर्डर्स हैं जिनको हम एसोसिएट कर सकते हैं कि साइकोलॉजिकल कंडीशंस हैं, लाइक स्किज़ोफ्रेनिया है, बाइपोलर है, देयर आर सम ईटिंग डिसऑर्डर्स, स्लीपिंग डिसऑर्डर्स, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स, उनको हम कह सकते हैं कि ये साइकोलॉजिकल कंडीशंस हैं, राइट? बट देन समटाइम्स इट्स लाइक गिल्ट है, शेम है, रिग्रेट है, सैडनेस है, ग्रीफ है, ये तो स्पिरिचुअल भी है और ये साइकोलॉजिकल भी है। आई कैन गिव एग्जाम्पल लाइक दिस कि आपको फॉर इंस्टेंस बहुत तेज बुखार है, फिजिकल कंडीशन है। बुखार आपके साइकोलॉजिकल नहीं है, इट्स अ फिजिकल कंडीशन। आपको बहुत तेज बुखार है, आर यू गोइंग टू प्रे द वे जो ऐसे आप नॉर्मली पढ़ते हैं? मुश्किल होगा उस दिन, आपसे कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाएगा सही तरह से। सो इट इज अ फिजिकल कंडीशन, बट वाई इट इज अफेक्टिंग यू इमोशनली एंड इट इज ऑल्सो अफेक्टिंग यू साइकोलॉजिकली, कि आपकी कॉन्सेंट्रेशन अफेक्ट हो रही है, बिकॉज बोथ ऑफ द हेल्थ आर कनेक्टेड। जब एक इंसान को फॉर इंस्टेंस द कैंसर पेशेंट्स, दे गो थ्रू डिप्रेशन एज वेल, हालांकि कैंसर इज नॉट अ साइकोलॉजिकल स्टेट, इट इज अ फिजिकल स्टेट, बट द हेल्थ आर कनेक्टेड, राइट? Okay. Okay, Api. The next question is very relatable, I guess, for all of us. How not to feel numb? I pray and recite the Quran, but I feel nothing in my heart. I believe Allah is listening to me and He's always by my side, but I feel emotionally numb. Also, after I do something I regret, I feel numb. Another issue is that I can't wake up for Fajr, and that's It's a very long question. A very long question. अच्छा, आई कॉल दिस नमनेस एज स्पिरिचुअली लो डेज। ठीक है, हम कह देते हैं कि मैं नम फील करूं, एक्चुअली दैट इज मोर लाइक ए स्पिरिचुअली लो डे। आ आप जब तक स्पिरिचुअली लो डे फेस नहीं करते, यू आर नॉट गोइंग टू एक्सपीरियंस एंड एंजॉय द स्पिरिचुअल हाई। इट इज कॉमन, इट इज वेरी वेरी नेचुरल, एंड एवरीवन गोज थ्रू इट। यहाँ पे मैं क्विकली आपको एक हदीस बताती हूँ, छोटी सी। एक नरेशन में आता है, एक सहाबी थे हजरत हंजला रजी अल्लाह तआला अन्हा, उनसे एक दफा अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हा मिलने आए, तो उन्होंने कहा कि हंजला कैसे हो? तो हंजला रजी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा कि हंजला तो मुनाफिक हो गया, ही सेड अबाउट हिमसेल्फ। तो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा कि सुभान अल्लाह, ये तुम क्या कह रहे हो? तो हंजला रजी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा कि हम जब अल्लाह के नबी की कंपनी में होते हैं तो ऐसे लगता है हम जन्नम और जहन्नम को और जन्नत को ना अपनी आंखों से देख रहे हैं, यानी कि इतना हाई फील करें। फिर जब हम अपने घर में वापस जाते हैं, अहलो याल में चले जाते हैं, अपने कामों में मसरूफ हो जाते हैं, वो तो फीलिंग भी कम हो जाती है।
अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सेड कि मुझे भी ऐसे ही फील होता है। Imagine he is sahabi or the very closest companion of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. वो कह रहे हैं मुझे भी ऐसे फील होता है। So they both went to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, narrated their situation जो वो experience कर रहे थे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि अल्लाह की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, अगर तुम यही फील करते हो जैसे तुम नरेट कर रहे हो, जब तुम मेरे पास होते हो तो ये फील करते हो, तो फरिश्ते तुमसे मुसाफा करेंगे तुम्हारे बिस्तरों पर और तुम्हारी रास्तों में। यानी कि हम लिटरल टर्म्स में ले सकते हैं कि वो तुम्हारे लिए पीस की फीलिंग क्रिएट करेंगे। मे बी हो सकता है वो लिटरली भी आके आपको हक करते हो, हम नहीं देख सकते। बट हंजला, एक वक्त ऐसा भी है और एक वक्त वैसा भी है। यानी कि देयर इज गोइंग टू बी अ स्पिरिचुअल हाई एंड देयर इज गोइंग टू बी अ स्पिरिचुअल लो। और ये बात अल्लाह के नबी ने 3 दफा कही थी। सो वो जो हमें लगता है ना कि नमनेस फील करें, एक्चुअली दैट इज अ स्पिरिचुअली लो डे। सो अपने आप को ब्लेम मत करें उस टाइम में। जस्ट कीप गोइंग विद द कॉन्स्टेंट्स, नमाज पढ़ें, कुरान पढ़ते रहें, क्योंकि अल्लाह ताला डजंट वांट यू टू वर्शिप द फीलिंग, अल्लाह ताला वांट्स यू टू वर्शिप हिम। अगर आपको हर वक्त वो एक हाई फीलिंग चाहिए ना, तो यू आर कमिंग फॉर द फीलिंग, यू आर नॉट कमिंग फॉर द राइट रीजन। आई होप दैट मेक्स सेंस। एंड ऑल्सो फजर के Okay, बारे में आपने Abby. सवाल पूछा Okay. कि हाउ वी कैन बी कंसिस्टेंट विद दैट। Yeah, that was a part of that question. ओके, आई थिंक इसी में उसको कवर कर लेते हैं सो दैट यू हैव मोर स्पेस फॉर ऑल मोर क्वेश्चंस, बिकॉज दैट माइट बी अ सॉर्ट ऑफ स्पिरिचुअली लो डे। बस ये है कि आप किसी से हेल्प ले लें, उससे कहें आपको फजर के लिए उठा दें, और हर वक्त अपनी फीलिंग्स को वर्शिप ना करें कि फील नहीं हो रहा तो नमाज ही नहीं पढ़नी, डिस्ट्रैक्शंस पे काम करें। Okay, Afi. Okay, our last question is, we always listen that Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam was the most kind human. He never said no to anyone. But today, हम्म। everyone is talking about boundaries. Is there any example of maintaining boundaries from his life? Yes, this is a very nice question. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam never said a no, but that does not mean कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर चीज को एंटरटेन किया था। जहाँ पे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ पे लोग उनको तकलीफ पहुंचाते थे या फिर उनको किसी भी तरह से आप कह सकते हो कि किसी भी फॉर्म ऑफ हार्म को पहुंचाने की कोशिश करते थे, ऐसा नहीं होता था कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे कि हाँ मुझे हार्म दे दो, राइट। और ये भी चीज जहन में रखें कि ही वॉज अ लीडर, ही वॉज अ मैसेंजर। उनका जो वो एक था ना पेशेंस लेवल, और उनका जो एक आप कह सकते हो कि टॉलरेंस लेवल है या फिर लीड करने की जो क्वालिटीज है, उसको हम मैच नहीं कर सकते। सेकेंडली, बाउंड्रीज का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत गलत हमने बिल्ड कर दिया है। बाउंड्रीज का मतलब ये नहीं होता है कि आपको अगर कोई तकलीफ दे रहा है तो आप उसको अलाउ करें कि वो आपको तकलीफ देता रहे। हम समझते हैं कि अच्छा मुसलमान जो होता है ना, वो कभी किसी को इनकार नहीं करता। हालांकि एक अच्छा मुसलमान वो होता है जिसको अपनी प्रायोरिटीज का पता होता है, और अगर उसने इनकार करना भी होता है तो वो बहुत तरीके से, बहुत प्यार से इनकार करता है। और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इन बाउंड्रीज को प्रैक्टिस किया था। आपको पता है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक दफा, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर द नेम, लेकिन उनको एक प्रपोजल सेंड किया था एक औरत ने, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकार कर दिया था। इजंट दैट अ बाउंड्री? और अल्लाह के नबी ने उनको किसी और से शादी उनकी करवा दी थी, बट व्हाट आई मीन इज कि भी तो बाउंड्री की फॉर्म है। देन अगेन इन अनदर नरेशन भी हमें मिलता है कि एक दफा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इफ यू गाइस नो अबाउट, उनके जो चचा थे हजरत हमजा, उनको बहुत ब्रूटली मारा गया था, आई थिंक इन गजवाए उहद और मे बी गजवाए बदर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो जब उनको मार दिया गया था ना, तो देयर वर टू पीपल, हिंद और उनके हस्बैंड जो है, उन्होंने, हिंद जो थी उन्होंने ना उनके हजरत हंजला के कलेजे को निकाल के च्यू किया था। और वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बहुत ड्रामेटिक, बहुत तकलीफ दे था। ठीक है। कुछ सालों बाद वो ईमान लिया और उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। तो वो जो उनके हस्बैंड थे वो अल्लाह के नबी के पास आए, तो अल्लाह के नबी ने उनको माफ कर दिया था। लेकिन अल्लाह के नबी ने कहा कि मेरे मेरे सामने मत आना। वाई? बिकॉज उनको तकलीफ होती थी, जब वो उनके सामने आते थे उनको मेमोरीज याद आ जाती थी। उन्होंने माफ कर दिया था, ये भी तो बाउंड्री है, राइट। तो इसी तरह की बहुत सारी आपको एग्जांपल्स मिलती हैं, लेकिन हमें अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि हाउ टू प्रैक्टिस बाउंड्रीज थ्रू द इस्लामिक लेंस। ये जो हम बदतमीज हो जाते हैं एंड आई एम मेंटेनिंग माय स्पेस, और टॉक्सिक लोग, अब्यूजिव लोग, ये हमारा दीन नहीं सिखाता। यू हैव टू लिव विद दोज पीपल एंड यू हैव टू लर्न हाउ टू डील विद पीपल। Okay.
Okay, I think now we are going to take 2 or 3 quick questions from the chat box from our audience. So let me elaborate some SOPs. Kindly keep your question as relevant as possible to the topic, and you can write your question in the chat box, and then I'll obviously read it out aloud, and then Api will answer that question. Api, there is a question: is healing in Islam always about removing the illness, or can healing also mean learning to live with the illness by remaining close to Allah? Very nice question. So there are some illnesses, there are some conditions that can be treated fully और वो दोबारा से नहीं आती. But then there are some illnesses, there are some conditions जो manageable होती हैं, right? If I talk about from the other perspective, जैसे diabetes के बारे में हम सुनते हैं, diabetes is a condition which is not reversible, ठीक है? आप उसको मैनेज कर सकते हैं. So yes, there are some psychological states as well. जैसे अगर मैं बात करूँ तो um, there are a lot of disorders. Let me give you guys an example of schizophrenia. या फिर अगर आप लोगों को थोड़ा सा लोगों को लगता है कि अच्छा ये कौन सा डिसऑर्डर है, intellectual disability है, तो that is a condition which can be managed. It cannot be treated fully, but still you should go and take treatment. और वो मैनेज भी बहुत अच्छे तरीके से हो जाती है. अस्सलाम वालेकुम। Okay, मेरा एक सवाल है कि ये जो प्रैक्टिसेस होती है ना, काउंसलिंग प्रैक्टिसेस, जैसे कि कहते हैं कि एक्सरसाइज ज़्यादा से ज़्यादा करे, यानी माइंड के स्ट्रेस को कम करने के लिए ना, और स्लीप मुकम्मल होनी चाहिए, और जो है इसके अलावा जो है वो डाइट अच्छी होनी चाहिए, और इसके Yes. अलावा ये कि इंसान जो है मतलब नाच वगैरह या कोई म्यूज़िक को सुने कि जो है वो माइंड जो है वो इंगेज रहे ना, तिलावत वगैरह नात, और इसके अलावा राइटिंग करे, रीडिंग करे, एक्टिविटीज करे, तो इसके अलावा जो मेडिटेशन है, प्रे है, तो इसके अलावा और कौन कौन सी जो ऐसी चीजें होती है जो कि माइंड को रिलैक्स करती है? ओके, आपका बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन मैं यहाँ पे ये कहूंगी कि पहले ये वाली चीजें कंसिस्टेंसी के साथ करें, क्योंकि अगर आप यही करना शुरू कर देंगे ना तो शायद आपको और चीजों की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी. जब आप फिजिकल एक्टिविटी अपनी लाइफ के अंदर लेके आते हैं ना, एक्सरसाइज, उसका इतना रिमार्केबल इफेक्ट होता है आपकी साइकोलॉजिकल स्टेट के ऊपर. आई कैन नॉट इवन से इट हियर. जो लोग करते हैं उन्हीं को पता है कि उसका क्या एक्सपीरियंस होता है, ठीक है? नमाज आप पढ़ते हैं, उसका एक अलग ही इफेक्ट होता है. आप जर्नलिंग करते हैं, पीपल हु डू जर्नलिंग दे नो इट कि भाई उसका कितना अच्छा इफेक्ट होता है. इसी तरह से स्किपिंग द म्यूजिक पार्ट, ऑब्वियसली दैट इज नॉट अलाउड इन आवर रिलीजन. और अगर आप स्टडीज भी थोड़ी सी पढ़ें तो आपको रियलाइज होगा कि म्यूजिक सिर्फ ऊपर ऊपर से आपको वो एक सूदिंग फीलिंग जरूर देता है, लेकिन म्यूजिक के बहुत हार्मफुल इफेक्ट्स हैं. आपकी कॉग्निशन को भी अफेक्ट करती है, आपकी मेमोरी को खराब करती है, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर बहुत इफेक्ट होती है. एंड दीज आर साइकोलॉजिकल थिंग्स जो लॉन्ग टर्म में होती है पर हम इतना सोचते ही नहीं है, ठीक है? सो ये चीजें पहले जरूर करें. किसी का बहुत अच्छा इफेक्ट आपको नजर आएगा. हम कहते हैं हम ना बस हर चीज पूछ लें, ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, वो भी हो जाए, कर हम कुछ भी नहीं रहे होते. इफ यू डू दीज 3 थिंग्स विद कंसिस्टेंसी, आई कैन गारंटी यू आपको अपनी मेंटल हेल्थ में बहुत फर्क नजर आएगा. एंड दैट इज इवन फ्रॉम द सुन्ना एज वेल. हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज अ वेरी एक्टिव पर्सन. लेजी और लेथार्जिक से इंसान नहीं थे वो. फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व थी उनकी लाइफ के अंदर. Okay, Api, now we're going towards our last question. Someone has asked, what if we're hesitant in making dua? We are thinking that हमारे actions उतने enough हैं ही नहीं कि हम दुआ करें, हम खुद तो कर नहीं रहे तो दुआ कैसे कर सकते हैं? ओके, सो आई हैव बीन समवन जिसको ना दुआ मांगने में, दुआ पे रिलाई करने पे बहुत मुश्किल होती थी. एंड ऑब्वियसली दिस इज जस्ट अ शॉर्ट सेशन, तो हम इतना ज़्यादा इन चीज़ों को डिस्कस यहाँ पे एलैबोरेटिवली नहीं कर सकते. इफ़ यू गाइज फॉलो माई इंस्टाग्राम या आप लोग पर्सनली सेशन में आना चाहें तो हम इसको डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं. जब आप दुआ नहीं करते हैं ना, तो उसके भी कुछ साइकोलॉजिकल रीजंस होते हैं कि आप क्यों नहीं कर पा रहे होते, ठीक है? आपका रिलेशनशिप अल्लाह ताला के साथ अफेक्टेड होता है कि आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे होते, या आपको लग रहा होता है कि आपके इन्वायरमेंट ने आपको कभी कभी ये चीजें सिखाई होती हैं. होता ही है कि आपको ऐसा लगने लग जाता है कि मेरे तो एक्शंस इतने नहीं है, मेरी दुआ क्यों कबूल होगी? हालांकि दुआ का इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है. अगर इस बात का इस चीज से कोई ताल्लुक होता तो ये जो हम सोशल मीडिया के ऊपर देखते हैं,
just let me give an example of Israel. वर्ल्डी तौर पे तो वो बहुत सक्सेसफुल है, देयर इज नो डाउट। उनके पास सारी टेक्नोलॉजीज हैं, सारी रिसोर्सेज हैं, पैसा है, हर चीज़, इकोनॉमी बहुत अच्छी है उनकी। तो द थिंग इज कि अगर एक मुशरिक भी, एक शिरक करने वाला इंसान भी अल्लाह से मांगेगा ना, तो अल्लाह ताला उसको देंगे, दुनिया में देंगे। बिलीवर्स का तो मामला ज्यादा अच्छा है कि वो अल्लाह से दुनिया में भी मांगे, आखिरत में भी मांगे। और एक बात हमेशा याद रखें, अगर आप अल्लाह ताला से मांगने की आदत नहीं डालते ना, यू आर गोइंग टू बी डिपेंडेंट ऑन समवन एल्स। फिर आप लोगों से मांगते हैं, लोगों से मांगने में बहुत ह्यूमिलिएशन होती है। और जब आप अल्लाह से मांगते हैं ना, दिल खोल के मांगते हैं, तो अल्लाह ताला आपको अनइमेजिनेबल सोर्सेज से देते हैं। एंड दिस इज नॉट समथिंग व्हिच आई एम जस्ट स्पीकिंग, आई एम स्पीकिंग आउट ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस, क्योंकि आई यूज्ड टू बी समवन जो बिल्कुल दुआ नहीं करती थी। एंड आई हैव सीन द लाइफ इज वेरी 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 नेगेटिव जब आप दुआ नहीं करते। यू डोंट लुक अप टू एनीथिंग, आपको हर वक्त वो एक अजीब सी कोफ्त सी होती है कि भाई कौन सा मिल जाना है, क्योंकि हमारी असल में अल्लाह ताला की जात के ऊपर यकीन ही नहीं है कि अल्लाह ताला मुझे देंगे। आप सोचें, अल्लाह ताला आपको बिना मांगे इतना कुछ दे रहे हैं। आपने यू डोंट वी डोंट डिजर्व एनीथिंग, यू डोंट डिजर्व टू बी हेल्दी, यू डोंट डिजर्व टू बी लिविंग अंडर अ रूफ, यू डोंट डिजर्व टू बी इन दिस सेशन इवन। मैं भी डिजर्व नहीं करती, आप भी डिजर्व नहीं करते, लेकिन अल्लाह ताला इज स्टिल गिविंग अस। मेरे पास अगर एक साउंड मेंटल हेल्थ है, इवन आई एम एबल टू स्पीक, आई एम एबल टू आर्टिकुलेट माई वर्ड्स, आई एम एबल टू डाइजेस्ट, आई एम एबल टू वॉक, आई एम एबल टू थिंक। ये सारी इतनी एक्सपेंसिव चीजें हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। ये अनमोल है। आपसे कोई आके गए मुझसे इतने इतने पैसे ले लो, करोड़ों में ले लो, जस्ट गिव मी योर वन हैंड, वुड यू गिव दैट? आप नहीं देंगे। तो सोचे अल्लाह ताला ने आपको इतने कीमती तोहफे विदाउट इवन आस्किंग दे दिए हैं, तो जब आप मांगेंगे तो अल्लाह ताला क्यों नहीं देंगे, राइट? Exactly. It was a great session, Afi. And as we come to the end of today's session, I would like to extend my heartfelt gratitude to our esteemed speaker, Ms. Fatima Mo, for sharing such valuable insights with us. I also like to thank all of the participants for joining us today and for being such an attentive audience. Jazakallah khair, everyone. For you all can start leaving.